Welcome back. And we were talking about that how philosophy impacts upon management research and building organizational theory. And we were talking about positivism and interpretivism. And we discussed that positivism is basically following the objective approach, whereas interpretivism is basically following the subjective approach. And in context of interpretivism, it is said that it gives you options, different points of view, and this is healthy for society. You can have access to different aspects of reality, and the individual is an active agent, which means that the individual is basically a constituent which can change over the time. It's not a static phenomena. And in terms of interpretivism, there is difficulty to identify right or wrong because you can interpret the things in many different ways. So anything goes is the thing which is basically restricting the limits of interpretivism. So anything could be just claimed without any validation of data or scientific approach. So that is something which is related with the interpretivist approach. So हम जब philosophical assumptions वो create करते हैं तो हमें अक्सर औकात प्योरली पॉजिटिविस्ट या इंटरप्रेटिविस्ट अप्रोच को फॉलो नहीं करना होता. वी कैन यूज बोथ एस्पेक्ट्स के बाज एस्पेक्ट्स में जहां पर सब्जेक्टिव अप्रोच की जरूरत है तो वी मे हैव टू कम अप विद सब्जेक्टिव डेटा एंड इंफॉर्मेशन, एंड बाज औकात जहां पर हमें ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो वी मे हैव टू फॉलो द ऑब्जेक्टिव स्टांस ऑफ व्हाट द पॉजिटिविस्ट्स आर एक्चुअली ट्राइंग टू कम अप विद. तो ये तो हमारे पास दो तरह की अप्रोचेस हो गई फिलॉसफी के कॉन्टेक्स्ट में कि हम एक गिवन इंफॉर्मेशन को किस तरीके से अपनी अप्रोच के मुताबिक वो डेवलप कर सकते हैं. अब जब हम फिलॉसफिकल डिटेल्स की बात करें तो यू जस्ट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दीज एक्सप्रेशंस. एंड अगेन माइंड यू कि अभी जो टर्मिनोलॉजीज एंड एक्सप्रेशंस मुझे यूज करने हैं आपके साथ रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, उनकी डेप्थ को समझने के लिए हमें इन एक्सप्रेशंस को एक दफा फिर से अपने जहन में वो रिवाइज करना है. फॉर एग्जांपल जब आप फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस वो कर रहे हो, फिलोसॉफिकल डिटेल्स की बात कर रहे हो, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ontology, which is basically talking about the being, the reality, which is sometimes said that the reality is out there. और उस रियलिटी और उस बीइंग, उस एग्जिस्टेंस के बारे में हमारी फिर डिफरेंट अप्रोचेस, हमारी डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस, हमारा डिफरेंट नॉलेज जो है वो कारफरमा होना शुरू होता है. सो इन टर्म्स ऑफ फिलोसॉफिकल एक्सप्रेशंस एंड assumptions, what are we studying related to the existence and the reality that would be covered under the scope of ontology. Once the ontological expressions are clear, once the existing aspects, the reality and the target is demonstrated or is clear in your mind that what you are going to talk about, the second step would be epistemology, which is again developed from the ontological expressions and is talking about that how can we have necessary knowledge about what we are studying. Okay, जो existence itself है, जो reality itself है, that is basically covered under ontological expressions. और फिर उस ontological expressions में जो being आपने develop की है उसको आप कैसे जान पाओगे कि what are we studying, what are we talking about, और उस स्टडिंग करने के लिए और उस चीज के बारे में बात करने के लिए हमें किस नॉलेज की जरूरत है. सो दैट वुड बी द डिस्कशन रिलेटेड विद द epistemological expressions, which is taking us towards the knowing phenomena, that from the being we are moving towards knowing. Once you have started knowing things, तो next जो हमारे पास expression आता है, that is that you need to talk about methodology. In terms of methodology, when you convert the knowing into methods of investigation, when you start talking about doing according to knowing, which is in relation with the being, तो हमारे पास methodology के अंदर चार मेन बातें वो जहन में रखनी हैं. First, we need to focus upon axiology, which is basically talking about that what questions to ask and why study them.
देन मेथडोलॉजी जो हमें यह बताएगी कि हाउ टू इन्वेस्टिगेट दोज क्वेश्चन। जैसे आप टिपिकल रिसर्च कॉन्टेक्स्ट में बात करते हो कि आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है, तो research question is basically what? Research question is basically the launch of investigation related to a particular knowledge base which is in relation with a particular existence and reality. Okay, so in methodology we talk about how to investigate those questions जो कि axiology में आपने develop किए, and then for that you need to talk about the criteriology. The criteriology is basically focusing upon that how we evaluate our investigations, कि हमारे पास criteria क्या होगा of judgment, हम कैसे जान पाएंगे कि the thing which we are investigating is the thing which we should be investigating. ठीक है, आप उस क्राइटेरिया के हवाले से आपके वैलिडिटी, आपके रिलायबिलिटी के जितने कॉन्टेक्स्ट हैं वो सब डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज फ्रॉम द क्राइटेरियोलॉजी विल बी देयर टू इन्वेस्टिगेट that how those investigations are to be evaluated. And at the same time, we need to bear in mind the phenomena of phenomenology. And when we use the word phenomenology, that would mean that what we experience during our investigations, the different phenomena, different impulses, different stimulus, जो उस चीज के ऊपर असरअंदाज हैं, उन सब के बारे में जब आप कुछ investigation launch करोगे, तो that would be covered under the scope of phenomenology. So याद रखिएगा कि दरअसल सब कुछ वो एक एग्जिस्टेंस और रियलिटी के तहत वो अवेलेबल है. अब उस एग्जिस्टेंस और रियलिटी के अंदर हम अपनी नॉलेज बेस को लेकर आते हैं, हम अपने मेथडोलॉजी को लेकर आते हैं. सो नो डाउट वी माइट बी कंप्रीहेंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च ऑनियन, लेकिन याद रखिएगा कि इन्वेस्टिगेशंस वो उस ऑनियन के बगैर मुमकिन नहीं हो पाएंगी. आप किसी भी चीज के बारे में इदराक हासिल नहीं कर पाओगे, आप तदब्बुर और तफक्कुर नहीं हासिल कर पाओगे, आप इन्वेस्टिगेशंस नहीं कर पाओगे, आप सवाल नहीं पूछ पाओगे जब तक कि आपको उसके कॉन्टेक्स्ट का इन डेप्थ वो पता ना हो. हमारा सबसे बड़ा डायलेमा ये है, रिसर्च ऑनियन से भी रिलेटेड और एवरीडे लाइफ से भी रिलेटेड, कि हम सवाल नहीं करते, हम चीजों को क्वेश्चन नहीं करते, हम बहुत से एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को सिर्फ फॉर ग्रांटेड लिए बैठे हैं. आपके लिए बहुत सी चीजों की डेफिनेशंस वो बिल्कुल इसीलिए हैं बिकॉज आपको यही बताया गया कि ये चीज ऐसे ही है. फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने जो मशीन इस वक्त मौजूद है जिसपे आप ये सेशन को अटेंड कर रहे हो, दैट माइट बी अ मोबाइल, दैट माइट बी अ कंप्यूटर, बिकॉज आपको यही बताया गया कि जो चीज आपके सामने इस लेक्चर को डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, दैट इज अ कंप्यूटर, दैट इज अ मोबाइल. ओके, सो आपने कभी क्वेश्चन नहीं किया इस बात को. लाइकवाइज बहुत से जिंदगी के मैटर्स को अगर आप देखो तो आपने उन चीजों को फॉर ग्रांटेड लिया होगा, आपने उन चीजों को क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया होगा. तो वहां पर जब हम चीजों को क्वेश्चन करना छोड़ देते हैं तो हमारी जो फिलोसॉफिकल असम्पशंस एंड डेवलपमेंट्स हैं वो रुक जाती हैं. तो ये सारे फिनोमेनास आपको इस तरफ गाइड करते हैं कि आपके जहन में डिफरेंट सवाल वो उभर सकें. अब जो भी चीज आपने इन्वेस्टिगेट की, जो भी चीज आपने फाइंड आउट की अपनी सारी रिसर्च से, फोर्थ कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि वी नीड टू टॉक अबाउट फाल्सिफिएबिलिटी. और फाल्सिफिएबिलिटी के अंदर हम अपनी उस तमाम तर तहकीक को एक मर्तबा झुटला कर भी देखते हैं कि आया क्या ये चीज वैसे ही है कि इट इज सम वे डिफरेंट है. ओके, सो हम जब ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम व्हाट इज एक्चुअली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, व्हाट आर द knowledge basis we have to study that particular phenomena or existence or reality. फिर हमारी मेथडोलॉजी क्या डेवलप की रहेगी और फिर हम अपने हाइपोथेसिस को डेवलप करते हुए उसको फाल्सिएबिलिटी के पैमाने के ऊपर वो लेकर चलेंगे. इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जैसा भी आपको मैंने बताया कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत कुछ फॉर ग्रांटेड पिक कर लेते हैं. A very interesting expression I was able to go through, and that expression was that psychology of the mature human being is an unfolding, emergent, oscillating, and spiraling process marked by progressive subordination of older, lower order behavior systems to newer, higher order systems as an individual's existential problems change. अब इस एक्सप्रेशन में बेसिकली बात की क्या की जा रही है कि हमारी जो डेवलपमेंट ऑफ थॉट है वो एक पुराने स्टेटस को से निकलकर एक नए पॉइंट की तरफ तब डेवलप करती है
जब हमारे एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स जो हैं वो इवॉल्व करेंगे, और जब तक हमें किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता, वी डोंट क्वेश्चन, वी डोंट फॉल्सिफाई। अब ये फॉल्सिफिकेशन का फिनोमेना क्या है? इस फॉल्सिफिकेशन के फिनोमेना को स्टडी करने के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन है हमारे पास, एंड दैट इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन इज दैट लाइट इज द एब्सेंस ऑफ डार्कनेस और डार्कनेस इज द एब्सेंस ऑफ लाइट। सो बेसिकली हम एक चीज को दूसरे चीज के ना होने से पहचानने की कोशिश वो कर रहे हैं। सो एक एग्जिस्टेंस किसी चीज के नॉन एग्जिस्टेंस से अपने आप को एविडेंट, अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट कर रही है। Another expression can be of falsifiability, and it says that, जो बड़ा टिपिकल एक्सप्रेशन वो कोट किया जाता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। सो आप एक चीज का डिनायल वो लेकर आते हो उस चीज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो करने के लिए। सो इन फिलॉसफी, जब हम फिलोसॉफिकल डिस्कशंस की बात कर रहे हैं, इट इज सेड दैट फिलॉसफी ऑफ साइंस विच इज रिलेटेड विद falsifiability, इसका दूसरा एक्सप्रेशन है रेफ्यूटेबिलिटी, कि आप चीजों को रिफ्यूट कर देते हो, इनकार कर देते हो, और उस इनकार से आप उस चीज की असल हकीकत को पहचानने की वो कोशिश करते हो। सो इसी एक्सप्रेशन को हम फिलॉसफी ऑफ साइंस में टेस्टेबिलिटी का नाम भी वो हम देते हैं। सो falsifiability, refutability और testability is the capacity for a statement, theory or hypothesis to be contradicted by evidence, कि एक चीज आपके सामने पेश की गई और फिर उस चीज को डिनाई करके, रिफ्यूट करके, इनकार करके आप उस चीज की हकीकत को पहचानने की कोशिश वो कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, द स्टेटमेंट दैट ऑल swans are white is falsifiable because one can observe the black swans exist. So falsification principle is basically proposed by Karl Popper. Okay? And Karl Popper said that falsification is a way of demarcating science from non-science. Okay? It suggests that for a theory to be considered scientific, it must be able to be tested and conceivably proven false. कि हम उस चीज, किसी चीज के होने का सबसे बड़ा इकरार यह है कि अगर आप उस चीज के ना होने का इनकार वो कर सको। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली फिलोसॉफिकल एजम्पशंस को पॉलिश करने में हमें काफी मदद वो देता है। अब डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज भी जो आपके सामने क्रिएट होती हैं, उन अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी ऑब्वियसली आपको इन्वेस्टिगेट करना है, आपको उस अपॉर्चुनिटी को व्हाट, व्हेन, वेयर, बाय, हाउ में से गुजारना है, तभी आप जान पाओगे कि आया वो अपॉर्चुनिटी एक अपॉर्चुनिटी है भी कि वो नहीं। अब यहां तक अपनी डिस्कशन को जो मैं इस सब्जेक्ट नॉलेज के हवाले से लेकर आया हूं, जिसमें के थ्योरी, मॉडल, आइडिया, कॉन्सेप्ट, उसके बाद हमने फाल्सिफिकेशन, हमने ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथोडोलॉजी, इन चीजों को एक हल्का सा टच किया जानने के लिए कि फिलोसॉफिकल डिटेल्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज एंड अजम्पशंस एंड क्वेश्चंस वो किस तरीके से हमारे इर्द गिर्द एग्जिस्ट कर रहे हैं। साथ हमने कहा कि चीजों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, आपके पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि यू शुड बी एबल टू क्वेश्चन the phenomena, you should be able to question the opportunity, you should be able to question the existence. Okay? अब यहां से हम अपनी डिस्कशन को एक स्टेप आगे और बढ़ाते हैं, and it is said, this is one of my favorite, very famous quote, it is said that eyes cannot see what the mind does not know. इसका मतलब यह ठहरा कि किसी भी चीज की हकीकत को जानने के लिए उस चीज को पहले जानना वो जरूरी होगा, और आप किसी भी चीज को तब तक नहीं इंटरप्रेट कर पाओगे, आप तब तक नहीं सेंस कर पाओगे जब तक आप उस चीज को बाय इट्स डेफिनेशन वो जानते नहीं हो। ओके, और ये एक इंसान के लिए जो एक बेसिकली जो एक ह्यूमन कंस्ट्रेंट्स एंड कंडीशंस हैं, ये एक्चुअली उस चीज को भी मैनिफेस्ट ये स्टेटमेंट वो कर रही है। अब अभी तक की जो एक मैंने एब्स्ट्रैक्ट डिस्कशन आपके साथ की है, वो एब्स्ट्रैक्ट डिस्कशन आपको इस पॉइंट पर लेकर आने के लिए वो मैंने की, और ये पॉइंट क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की जो मेन डिस्कशन है वो शुरू होती है फ्रॉम एंथ्रोपोमॉर्फाइजेशन ऑफ कॉर्पोरेशंस।
ओके, नाउ ये बिल्कुल उस तरह का कॉन्सेप्ट है जिस तरह का कॉन्सेप्ट आप एक सिंपल लिटरेचर के अंदर वो पढ़ते हो, विच इज पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन बेसिकली क्या है कि आप एक नॉन एग्जिस्टेंस को एक एग्जिस्टेंस असाइन करके समझने की कोशिश वो करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जमीर की आवाज। अब जमीर इज नॉट समथिंग विच इज लाइक अ फिजिकल फिनोमिना, और उसकी आवाज जो कि एक फिजिकल फिनोमिना है, जब हम इस चीज को इंटरप्रेट करेंगे कि जमीर की आवाज, सो दैट इज बेसिकली personification of something which is not as such in physical demonstration. Okay, अब इसी तरह की चीज को जब मैनेजमेंट स्कोप में फिलोसॉफिकल डिस्कशंस में अडॉप्ट किया गया, तो वी आर टॉकिंग अबाउट एंथ्रोपोमॉर्फाइजेशन ऑफ कॉर्पोरेशंस। और एंथ्रोपोमॉर्फाइजेशन ऑफ कॉर्पोरेशंस का मतलब यह है कि जब कभी भी हम वर्ड कॉर्पोरेशन यूज कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअली अ ह्यूमन एंटिटी, that corporations are referred as human beings. Okay, the head is the top management, the trunk is the operational core, the limbs are the support staff. Okay, now this is very interesting terminology perhaps, जिसमें कि हम एक ह्यूमन बॉडी को एक कॉर्पोरेशन के साथ एसोसिएट करके वो चीजों को एलैबोरेट करेंगे। और साथ ही साथ जब हम एक ह्यूमन को एक कॉर्पोरेशन के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, तो उस कॉर्पोरेशन की फिर एक पर्सनैलिटी भी होगी, उस कॉर्पोरेशन के फिर मूड्स भी होंगे, उस कॉर्पोरेशन का फिर एक थिंकिंग प्रोसेस भी होगा। जस्ट लाइक हमने जब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की डिस्कशन की थी, तो वी टॉक्ड अबाउट अ सब्जेक्ट नॉलेज विच इज टॉकिंग अबाउट सोशल साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी बाय डेफिनेशन इज बेसिकली द थिंकिंग फिनोमेना एसोसिएटेड विद ह्यूमन। लेकिन जब हम सोशल साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो हम सोसाइटी को एज ए ह्यूमन पिक करते हैं, और फिर मुआशरे की सोच को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। तो जिस तरह सोशल साइकोलॉजी ने मुआशरे को एक इंसान के तौर पर पिक किया, बिल्कुल उसी तरह इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंथ्रोपोमॉर्फाइजेशन ऑफ कॉर्पोरेशंस हम ह्यूमन को एज कॉर्पोरेशन वो एसोसिएट कर रहे हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप मार्केटिंग की डोमेन में भी देखो, तो यू यूज दिस एक्सप्रेशन के ब्रांड्स आर ह्यूमन टू। ये बड़ा मजे का एक्सप्रेशन है कि ब्रांड्स आर ह्यूमन टू। वेल, एटलीस्ट द रियली गुड ब्रांड्स आर। ओके, तो हर एक ब्रांड जिसको आप रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हो, आप मार्केट में देखते हो, एडवर्टाइजमेंट्स में देखते हो, तो हर एक ब्रांड उसके अंदर मार्केटिंग के एक्सप्रेशन में हम एक्सप्रेशन बात के बारे में बात करते हैं कि ब्रांड पर्सनैलिटी। ओके, नाइकी की एक अपनी पर्सनैलिटी है, एप्पल की एक अपनी पर्सनैलिटी है, ह्यूलेट पैकार्ड एक अपनी पर्सनैलिटी कैरी करता है। ओके, तो हमने जो, क्योंकि हमने एक शुरू में एक एक्सप्रेशन कोट किया था कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो बेहतरीन तख्लीक है वो एक इंसान है। तो इंसान चूंकि तख्लीक में सबसे अफजल है, सबसे आला है, तो हमने उसी इंसान के कॉन्टेक्स्ट में चीजों को भी एसोसिएट करना वो शुरू कर दिया, ताकि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में वो आ सकें। अब ये कोई नया फिनोमिना नहीं है, ये कोई अछूता फिनोमिना नहीं है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आप में से कभी किसी ने वर्ड कॉर्पोरेशन को डिक्शनरी में देखा है? आई डाउट कि शायद नहीं देखा होगा। अगर आप वर्ड कॉर्पोरेशन को डिक्शनरी में देखें, तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि कॉर्पोरेशन का लफ्जी मायने होता है एन इंडिविजुअल, अ ह्यूमन। नाउ कैन यू इमेजिन दैट कि हम रोजमर्रा जिंदगी में इस एक्सप्रेशन को कितना यूज करते हैं कॉर्पोरेशन, लेकिन कॉर्पोरेशन का एक्चुअल मीनिंग इज एक्चुअली एन इंडिविजुअल एंड अ ह्यूमन। सो एंथ्रोपोमॉर्फाइजेशन उसी चीज को मैनिफेस्ट वो कर रही है। यहां पर मैं आपके साथ इस सारी डिस्कशन का एविडेंस वो पेश कर रहा हूं। I have taken the definition from the Oxford English Dictionary, and according to the Oxford English Dictionary, it is said that corporation is a noun and is talking about body corporate authorized to act as a single individual, artificial person created by royal character, prescription or act of a legislature with authority to preserve certain rights in perpetual succession. अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को तवज्जो से देखो, तो यू विल कम टू नो कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ ह्यूमन एग्जिस्टेंस।
ओके हमारी जो ऑन्टोलॉजी है इस वक्त वो इस ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात कर रही है, जिसका नाम हमने एक कॉर्पोरेशन वो रखा हुआ है. Hence, for instance, the very word corporation metaphorically invokes an image of the body corporate in which the leaders of the organization are similar to the brains of the human body. जैसे आपको मैंने बताया कि हमारे पास उसकी पूरी मैनिफेस्टेशन आती है, उसमें द हेड इज द टॉप मैनेजमेंट, द थिंकिंग प्रोसेस, द ट्रंक इज द ऑपरेशनल पार्ट विच इज द मिडल मैनेजमेंट, द लिम्स आर द सपोर्ट स्टाफ, आर द वर्कर्स. Okay, so this entails what is called anthropomorphization, literally meaning the ascription of human form, qualities and attributes. Okay, अब ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी के स्टार्ट में आपको मैंने एंथ्रोपोमॉर्फाइजेशन का रेफरेंस इसलिए दिया कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के रेफरेंस में जो लेटेस्ट रिसर्च जा रही है, दैट इज लिंक्ड विद एंथ्रोपोमॉर्फाइजेशन ऑफ नॉट जस्ट द ब्रांड्स बट ऑफ द कॉर्पोरेशंस एज वेल. जैसा कि आप यहां पर देखिए, आपके सामने मैं स्लाइड डिस्प्ले कर रहा हूं विच इज अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम द वॉल स्ट्रीट जर्नल. और वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो लेटेस्ट आर्टिकल पब्लिश आपका हो रहा है, दैट आर्टिकल सेज आवर ब्रेन से कॉर्पोरेशंस आर पीपल टू, and research finds that people use similar parts of the brain to understand corporate and human behavior. Okay, अब इस हवाले से ये तो एक वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक आपको मैंने मेन स्ट्रीम आर्टिकल का रेफरेंस दिया कि हाउ एंथ्रोपोमॉर्फाइजेशन इज टेक्निकली इन प्रैक्टिकली मैनिफेस्टेड इन 2020 एंड 2021 रिसर्च. अब आपको मैं कुछ आर्टिकल्स दिखाता हूं जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर जाकर स्टडी करेंगे कि हाउ दिस एंथ्रोपोमॉर्फाइजेशन, जो कि एक ऑन्टोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है, उसके बारे में हमें नॉलेज बिल्ड करना है, फिर अपनी मेथोडोलॉजी डेवलप करनी है, उस मेथोडोलॉजी के अंदर फाल्सिफिकेशन को हमने लेकर आना है, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट कि हमारा हाइपोथेसिस, हमारी थ्योरी सपोर्ट वो हमें किस नतीजे पर पहुंचा रही है, सो दैट वी कैन कम अप विद द कंट्रीब्यूशन इन द बॉडी ऑफ नॉलेज, जिसके बारे में अभी हमने शुरू में कर्ट लुईन की स्टेटमेंट कही थी कि एक प्रैक्टिकल थ्योरी से ज्यादा, एक अच्छी थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल चीज शायद और कोई आपको नजर नहीं आ पाएगी. आप लोगों ने अपने गुज़िश्ता कोर्सेज में एक बड़ा मशहूर कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, बीसीजी मैट्रिक्स, एंड यू माइट हैव हर्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट गिवन बाय बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप. सो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने एक लेटेस्ट आर्टिकल जो आपके लिए मैंने उनका सॉर्ट आउट किया है, दैट इज फ्रॉम February 8, 2018, और बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने इस आर्टिकल से रिलेटेड जो टाइटल प्रेजेंट किया, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, व्हिच ट्रिगर्ड माय इंटेंशन टू शेयर विद यू, एंड द टाइटल ऑफ द आर्टिकल इज द ह्यूमनाइजेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन. अब इस ह्यूमनाइजेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन को समझने के लिए हमें दो अल्फाज और सीखने हैं आज के इस डिस्कशन में, और वो अल्फाज हमारे हैं रिलेटेड टू ओकेनोमोस, और दूसरा है क्रेमेटिस्टिक्स. ठीक है, नाउ बिफोर आई डिस्कस दीज टू एक्सप्रेशंस विद यू, the question like being asked to me in Zoom group chat is that organizational culture also represents like individual behavior. Absolutely yes, absolutely yes. क्योंकि हम जब बात करते हैं वैल्यूज की, नॉर्म्स की, बिलीव्स की, तो कल्चरल वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीव्स, थॉट प्रोसेसेस, पैराडिम शिफ्ट, ये तमाम एक्सप्रेशंस एक्चुअली एसोसिएटेड है विद द ह्यूमन डेवलपमेंट. ओके, सो कमिंग टू दिस टॉपिक ऑफ ह्यूमनाइजेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन, दो अल्फाज मुझे आपसे डिस्कस करने हैं before I share with you the article, और वो अल्फाज हैं oikonomos, which is talking about two words from the Greek expression, जिसमें के oikono would mean house and nomos would mean rule and law, and basically this is an ancient Greek word meaning household manager, or in Byzantine times the term was used as a title of a manager or treasurer of an organization. ओके, सो जब हम ह्यूमनाइजेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन की बात करेंगे तो ओकेनोमोस का जो एक्सप्रेशन है, दैट इज टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन एलिमेंट, जिसके बरक्स जब हम क्रेमेटिस्टिक्स की बात करते हैं तो क्रेमेटिस्टिक्स का जो एक्सप्रेशन है, दैट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ वेल्थ, और ए पर्टिकुलर थ्योरी ऑफ वेल्थ एज मेजर्ड इन मनी has historically
had varying levels of acceptability in Western culture. तो क्रेमेटिस्टिक्स बेसिकली मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये दो वर्ड्स जो कि अभी हमारी डिस्कशन में इन्वॉल्व होने हैं, ओकेनोमोस याद रखिए रेफरिंग टू ह्यूमन एलिमेंट, और क्रेमेटिस्टिक्स दैट इज रेफरिंग टू द मटेरियल एस्पेक्ट. अब इन दो चीजों को मद्देनजर रखकर आपसे मैं आर्टिकल शेयर कर रहा हूं, ह्यूमनाइजेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन, पब्लिश्ड इन 2018. आई एम टर्निंग ऑफ द स्क्रीन शेयर और आपसे मैं स्क्रीन शेयर ऑन कर रहा हूं इस आर्टिकल की. Okay, now you are looking at the article. The Boston Consulting Group has published this article and it has got world famous repute. अब इस Boston Consulting Group में जब उन्होंने ह्यूमनाइजेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन की बात की, तो what they come up with is basically an idea कि कॉर्पोरेशंस दो एस्पेक्ट्स में एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट होती हैं. एक उसका मटेरियल एस्पेक्ट है और एक उसका ह्यूमन एस्पेक्ट है. अब ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेशन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं आपको डायरेक्टली उस टॉपिक पर लेकर आ रहा हूं, जिसमें वो ह्यूमनिस्टिक ग्रोथ की वो बात कर रहा है रिलेटेड टू द कॉर्पोरेशन. एंड इट इज सेड दैट यू हैव टू मेजर द कैरेक्टर ऑफ कॉर्पोरेशंस. ओके, अब आप सोशल साइकोलॉजी की तरह एक जिस तरह पूरी सोसाइटी की थॉट की बात करते हो, इस तरह हम एक कॉर्पोरेशन को, एक कॉर्पोरेट बॉडी को हम एक ह्यूमन कैरेक्टर असाइन करेंगे और फिर ह्यूमन कैरेक्टर की जो मैनिफेस्टेशंस हैं उनको स्टडी करेंगे. फॉर एग्जांपल, इट इज सेइंग मेजरिंग द कैरेक्टर ऑफ कॉर्पोरेशंस. ये एक दो पैराग्राफ्स मेरे साथ पढ़िएगा. टू टेस्ट द आइडिया दैट ह्यूमन कंपनीज प्रोड्यूस बेटर आउटकम्स. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन हम शुरू कर रहे हैं. टू टेस्ट द आइडिया दैट ह्यूमन कंपनीज, ये मेरा माउस कर्सर जहां पर मूव कर रहा है, काइंडली इसको फॉलो अप कीजिएगा. टू टेस्ट द आइडिया दैट ह्यूमन कंपनीज प्रोड्यूस बेटर आउटकम्स, वी डेवलप्ड अ मेथडोलॉजी टू मेजर द एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ कंपनीज. अब आपसे मैंने फिलोसॉफिकल डिटेल के अंदर ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथडोलॉजी, उसके बाद फाल्सिफिकेशन के ऊपर बात की. अब यहां पर वो बात कर रहा है कि हम एक मेथडोलॉजी को यूज करेंगे जो कि कंपनीज के कैरेक्टर को मेजर करने के लिए हमें मदद देगी. अब उस मेथडोलॉजी में दे सेड कि लैंग्वेज, जो जुबान हम यूज कर रहे हैं, लैंग्वेज इज ए डिफाइनिंग ह्यूमन फीचर. ठीक है, अब ह्यूमन के साथ एक टिपिकल जो एस्पेक्ट एसोसिएटेड है वो उसकी लैंग्वेज है. सो लैंग्वेज इज ए टिपिकल ह्यूमन रिलेटेड फीचर enabling us to express our values, intentions and character. अब अगर हम ये कहें कि ऑर्गेनाइजेशन की लैंग्वेज क्या है, कॉर्पोरेशंस की लैंग्वेज क्या है, तो अब आप चाहे उसको एक जार्गन का नाम दो या चाहे आप उसको इस मेथोडोलॉजिकल फ्रेम्स में लाकर इन्वेस्टिगेट करो, यू विल कम टू नो कि एवरी कॉर्पोरेशन इज हैविंग एक्चुअली an intention of using a particular language. So companies use language too, and we can assess their character by leveraging natural language processing, जिसको हम NLP टेक्नोलॉजी का नाम देते हैं. अब उस NLP टेक्नोलॉजी को बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने यूज किया, and just look at their findings. Using nearly 100,000 companies, okay, using nearly 100,000 company filings from 2005 to 2016. What they investigated, we developed an algorithm to detect semantic fields around keywords reflecting companies' orientation towards total shareholder return maximization, जो कि आप किसका कंसर्न है, कंसर्न रिलेटेड विद द क्रेमेटिस्टिक्स. ठीक है, और हायर पर्पस जो कि इकोनॉमिया से रिलेटेड होगा. तो अब 100,000 कंपनीज का एल्गोरिदम क्रिएट करने के बाद दे केम टू नो कि उनके पास दो तरह के एक्सप्रेशंस लैंग्वेज के डेवलप हो रहे हैं. एक को उन्होंने लिंक किया विद द क्रेमेटिस्टिक्स और दूसरे को उन्होंने लिंक किया विद द ओकेनोमोमिया. ओकेनोमिया, okay, it's a difficult pronunciation, oikonomia. Okay, so we controlled for instances of insincerity by considering the consistency, volume, diversity of data. In particular, our analysis
excluded companies with excessive variation across data sources, which we took as an indication of attempts to paint a different picture to different audiences. ठीक है, यहां पर अब ये जो आर्टिकल अभी हमने देखा जिसमें कि हम ह्यूमनाइजेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, वी केम टू नो कि इस टॉपिक को, इस एंथ्रोपोमॉर्फाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट को एलैबोरेट करने के लिए लैंग्वेज की जो इंटरप्रिटेशन है उसको बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने वो यूज किया. अब इसी चीज को हम कुछ और आर्टिकल्स के रेफरेंस से देखते हैं. आई एम मूविंग बैक टू योर स्लाइड्स. आई होप द स्लाइड्स आर विजिबल एंड माय वॉइस इज ऑडिबल. अब इस टॉपिक को देखिए. अब अगेन वन ऑफ द टॉप नॉच जर्नल मैंने आपके लिए पिक किया, एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट. और एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट में जो टाइटल पब्लिश हो रहा है रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, and that is talking about anthropomorphization and the dynamics of corporate reputation. Again, ये आर्टिकल मैं आपके लिए जो पिक कर रहा हूं, I'm not talking about 1949, I'm talking about 2019. 1 अगस्त 2019 को एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट में रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी डेवलपमेंट हमारे पास आर्टिकल आ रहा है, एंथ्रोपोमॉर्फाइजेशन एंड द डायनामिक्स ऑफ कॉर्पोरेट रेपुटेशन. ओके, इसके एब्स्ट्रैक्ट को जरा देखिए. It is said that stakeholders impose human characteristics on organizations in order to characterize them. Okay, अब जो इमारत है वो तो एक ईंट गारे की बिल्डिंग सिर्फ नहीं ठहरी. अब एक इमारत जिसको आप एक कॉर्पोरेशन का नाम दे रहे हो, that corporation is taking the characteristics of the human. Frequently, firms use or are basically imbued with personalities or evaluated on the basis of their character और कंपिटेंस. ठीक है, मच लाइक पर्सन, जिस तरह एक इंसान की कंपिटेंसीज होती हैं उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन की कंपिटेंसीज हैं. अब आपको मैं रेफरेंस देता हूं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का. यू माइट हैव हर्ड अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड दैट इज टॉकिंग अबाउट कोर कंपिटेंसीज. अब हमने डिस्कस किया था कि कंपिटेंसीज ये तो स्किल सेट से डेवलप हो रही थी और हमने डिफरेंट कंपिटेंसी लेवल्स की बात की थी, तो वो तो ह्यूमंस के केस में हमारी स्किल्स एंड कंपिटेंसीज की डिस्कशन थी. लेकिन इसी वर्ड ऑफ कंपिटेंसीज को अब हम एसोसिएट कर रहे हैं विद द कॉर्पोरेशन. ओके, इसी तरह एक और आर्टिकल देखिए. अगेन आई एम रेफरिंग यू टू द टॉप नॉच जर्नल विच इज एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट. और एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट में अब आपको मैं 9 जनवरी 2020 का आर्टिकल वो दिखा रहा हूं. और 9 जनवरी 2020 को एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट में जो आर्टिकल पब्लिश हो रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट माय कंपनी इज फ्रेंडली, माइंस इज अ रेबल, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म एंड शिफ्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिटी फ्रॉम व्हाट टू हु. कि अब आप एक मटेरियल से, व्हाट से आप अपनी इंटेंशंस को हु पर लेकर जा रहे हो. एंड अगेन इन द कल्चरल पर्सपेक्टिव मेनी अ टाइम्स इट इज सेड कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ समझना और जानना चाह रहे हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी को जानना चाह रहे हैं, इफ यू नीड टू नो कि माइक्रोसॉफ्ट अपनी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट कहां पर करेगा, यू शुड बी नोइंग कि बिल गेट्स ने अपनी वेकेशंस कहां पर प्लान की हैं. In the organization theory books, a very interesting expression is written कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बेसिकली टॉप मैनेजमेंट के मेंटल स्टेट को मैनिफेस्ट कर रहा होता है. ओके, सो टॉप मैनेजमेंट की पर्सनल वैल्यूज ऑर्गेनाइजेशन की कल्चरल वैल्यूज होती हैं. अब इन तमाम बातों से भी आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि एंथ्रोपोमॉर्फाइजेशन, जिसमें हम एक एग्जिस्टेंस असाइन कर रहे हैं, एक एंटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर रहे हैं रिलेटेड टू द कॉर्पोरेशन, और कॉर्पोरेशन का लफ्जी मतलब भी एक इंडिविजुअल का है, एक ह्यूमन एंटिटी का है. तो वहां पर अब हमें व्हाट से हाउ की तरफ डेवलप करना है. अब इस एब्स्ट्रैक्ट को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट है ताकि हमें क्लियर हो जाए कि ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में किस तरह के एक्सप्रेशंस वो यूज किए जाते हैं. The abstract says that why don't we blink when our organizations are described as friendly or aggressive? Why do we expect our organizations to care about our well-being? अब आपको मैंने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में एक एक्सप्रेशन बताया था, POS. POS stands for perceived organizational support. अब ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट तो एक इंसान को प्रोवाइड करता है, और उसमें जो हमारी परसेप्शन क्रिएट हो रही है वो भी हमारी इंसान से रिलेटेड क्रिएट होती है. लेकिन हमने यहां पर अब पर्सोनिफाई कर दिया एक ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी को. अब क्वेश्चन ये है कि इस टॉपिक को हम गो थ्रू क्यों कर रहे हैं. इसका जवाब बेटा ये है कि जब आप
ह्यूमन साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर पाओगे, आप ह्यूमन वैल्यूज को अंडरस्टैंड कर पाओगे, तो आपके लिए कॉर्पोरेट साइकोलॉजी और कॉर्पोरेट वैल्यूज का समझना वो डिफिकल्ट नहीं होगा। और तमाम वो एक्सप्रेशंस जो हम ह्यूमन माइंड अंडरस्टैंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उन्हीं तमाम को हम ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए भी यूज वो कर सकते हैं। ओके, so why do we expect, अब मैं दोबारा एब्स्ट्रैक्ट से पढ़ रहा हूं, why do we expect our organizations to care about our well-being? We argue that anthropomorphism, an attribution of human qualities or behavior to non-human entities, objects and events, is both pervasive and surprisingly important in organizational life. Anthropomorphism helps satisfy the motives for sense making and social connection, even if the veracity of the results is in the eye of the beholder. Although anthropomorphism has broad relevance to various domains, we primarily focus on organizational identity. अब एक और एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, एक और कंस्ट्रक्ट हमारे पास आ गया, एंड द कंस्ट्रक्ट आई एम पॉइंटिंग आउट इज ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिटी। अब इसके ऊपर रिसर्च होने की जरूरत है, इसके ऊपर कॉल फॉर पेपर्स आ जाएंगे जो कि ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल पर्सनैलिटी के बारे में आपसे इन्वेस्टिगेशन डिमांड करेंगे। ओके, सो वी कंडक्ट that anthropomorphism enables organizational members to conceive of their organization in terms of who it is, who we are as an organization. For example, our personality as an organization, our attitude as an organization, our affect as an organization. तो feelings को भी हम corporations के साथ associate वो कर रहे हैं, rather than हम ये बात करें कि what it is, what we are. So हम what we are की बजाय हम उसको चेंज कर चुके हैं who we are में. Okay, because who की elaboration would be much deeper as compared to what. Okay, so उसमें इंडस्ट्री और स्ट्रक्चर और एज ऑफ कंपनी की बजाय हम पर्सनैलिटी, एटीट्यूड और अफेक्ट की बात करते हैं, और यहीं से आपकी डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द ब्रांड्स भी वो एस्टैब्लिश होता है कि जहां पर आप ब्रांड्स पर्सनैलिटी के ऊपर अपनी डिस्कशन वो लॉन्च करते हो। ओके, सो द शिफ्ट facilitates a more visceral, memorable, and energizing organizational identity with major implications. We discuss how anthropomorphism results from both top-down, this is who we are, and the bottom-up, this is you appear human to me dynamics. We also discuss how treating an organization as if it were a person primes interpersonal emotions, behaviors, and accountability, and facilitates social, relational, and personal identification, as well as a psychological contract with the organization. अब जब हमने एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव में बात की कि there is a psychological contract, तो psychological contract तो ह्यूमन के साथ होता है, इसी तरह हमने कंपटीशन के एक्सप्रेशंस को भी कोऑप्टिशन में कन्वर्ट कर दिया। और कोऑप्टिशन क्या था? वेयर कॉर्पोरेशंस बेसिकली कोऑपरेट विद ईच अदर रादर देन कंपीट विद ईच अदर। इस डिस्कशन को हम कैरी ऑन कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट मीटिंग में, प्लीज जल्दी से ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।